جو اللہ نے تکلیف دور کی اس کے بعد کبھی بھی اللہ کو نہیں بھولنا، یہ ہے مومن کے شان۔ کیسے مومن ہے ہم؟ اللہ ہزاروں نعمتیں دیتا ہے ہم کو، ہزاروں تو میں بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں وہ سب بازو میں ڈال دیتے ہیں، ایک نعمت سے چھین لیا، آہا کتنی تکلیف میں مبتلا کیا اللہ، میں ہی نظر آیا۔ بھائی ادھر بھی دیکھو، ادھر کروڑوں نعمتیں ہیں، بھول گئے؟ ادھر ایک تکلیف یہی نظر آ رہا، بھائی ادھر بھی تو دیکھو نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقدس کتابہ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ الحمدللہ، یہ ایک مرتبہ قرات کے ساتھ سنے، ایک مرتبہ سادی آواز میں آپ نے سنا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال سوال کے طور پر پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں تو بھی میں بیان دوں گا، نہیں دیں گے تو بھی بیان دوں گا۔ آپ دیکھیے، ایک انسان ہے، ایک انسان اگر اس کو کچھ ضرورت ہو، مطلب ہو، تو وہ ایسے انسان کی طرف رخ کرتا ہے جو اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے۔ ضرورت پوری ہونے کے بعد اگر وہ انسان جس نے ضرورت پوری کی ہے اس کی طرف خیال نہ کرے تو ایسے انسان کو معاشرے میں کیا کہیں گے؟ ایسے انسان کو معاشرے میں مطلبی کہیں گے کہ مطلب کہ وہ یاد کرتا ہے اور مطلب نکل جانے کے بعد ایسا بھول جاتے ہیں کہ اس نے کبھی ہماری ضرورت پوری ہی نہیں کی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب ضرورت پڑ جاتی ہے تب پھر السلام علیکم، پھر ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے تو مڑ کر دیکھتا بھی نہیں ہے۔ میں ایسے ہی بنا کر نہیں پیش کر رہا ہوں، میرے پروردگار نے ہر بات اپنے بندے کے سامنے کھول کر بیان کی ہے، اور اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو ایسے انسان کو معاشرے میں کیا کہیں گے؟ مطلبی کہیں گے۔ ایسے انسان کی سوسائٹی میں عزت ہوتی ہے، اس کا کوئی مرتبہ ہوتا ہے، اگر سامنے سے گزرنے بھی لگ جائے نا، ارے مطلبی انسان جا رہا، بولتے کیا نہیں بولتے؟ زبان سے نہیں بولے تو نہیں بولے، دل میں تو سمجھتے کیا نہیں، ہاں مطلبی انسان جا رہا۔ لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، ہر حال میں وہ اپنے منعم کو یاد کرتا ہے، اپنے اوپر جس نے انعام کیا ہے اس کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن دونوں حالتوں میں بھلائی چن لیتا ہے، اگر اللہ اسے کوئی اچھائی دیتا ہے تو بڑھ کر شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر اللہ کوئی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو بھی کہتا ہے پروردگار میں بھی تیرا، میری تکلیف بھی تیری، میں بھی تیرا، میری تکلیف بھی تیری، تو نے اچھا رکھا تو بھی اچھائی کے لیے رکھا ہے، اگر تو نے تکلیف میں رکھا ہے تو اس میں بھی تیری کوئی نہ کوئی منشا، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ دونوں حالتوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے مومن۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب خوشی کی حالت میں تھے خوب اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تکلیف میں مبتلا کر کے دیکھا کہ خوشی میں تو میری بہت تعریف کر رہا ہے، غمی میں میرے اوپر شکوہ تو نہیں کرتا۔ ایوب علیہ السلام شکر گزاری سے زیادہ صبر کرنے میں مضبوط ثابت ہو کے دکھائے، کیوں؟ مومن۔ اور اللہ نے بھی وہی فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد ہمیشہ کرتے رہو اور وقت پڑنے پر میں بھی تم کو یاد کروں گا، یعنی خوشی میں مجھے یاد کرو، تم تنگی میں تم کو یاد کروں گا۔ ہمارا الٹا ہے، جب ہم کو کوئی خوشی ملتی ہے ہم بھول جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مگن ہو جاتے ہیں ہماری وہ نعمتوں میں، اس کو کھانے میں، پینے میں، استعمال کرنے میں، تکبر میں، اور جب تنگ دستی آتی ہے نا تو پھر اللہ کا چوکٹ پکڑ لیتے ہیں، اللہ اللہ بہت تکلیف ہے پروردگار، پھر جب تکلیف دور ہو جاتی ہے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے اس بات کو بھی نہیں چھپایا ہے، اس بات کو بھی قرآن میں واضح کر دیا کہ اے انسان تو کتنا مطلبی ہے یار،
यार तो हम कहते हैं, मेरे ज़बान से निकल जाता है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे तो कितना मतलबी है, ज़रूरत पड़ी तो मेरे सामने आकर हाथें फैलाता है, गिड़गिड़ा कर मुझसे दुआ करता है, मेरे सामने अपनी ज़रूरतों को पेश करता है, लेकिन जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर भूल जाता है मुझे। तो अल्लाह ने भी इस बात का जिक्र कर दिया। अब वो आयत पढ़ो, तर्जुमा करो। अल्लाह तबारक व तआला देखिए क्या फरमाता है, वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्र, और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा, वो सोते हुए भी हमको याद करता है, बैठे बैठे भी याद करता है, खड़े खड़े भी याद करता है। सोते हुए याद करता, बैठे हुए याद करता, खड़े खड़े याद करता। क्या मतलब इसका? हर वक्त अल्लाह 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 अल्लाह, मुसीबत 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 मुसीबत। लेकिन जब हम वो मुसीबत दूर कर देते हैं, पलट जाता है, यूं टर्न मार लेता है, जैसा कि हमें उसने पुकारा ही नहीं, हमने उसकी सुनी ही नहीं, हमने उसकी ज़रूरत को पूरा ही नहीं किया। देखिए अल्लाह फरमाता है, फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, जब हम उसकी उस तकलीफ को दूर कर देते हैं, मर्रा कअल्लम यदउना इला ज़ुर्रिन मस्सा, गुजर जाता है। मर्रा या मुर्रों को माने गुजरना। इत्तेफाक से एक बड़े बहुत बुजुर्ग आलिम साहब भी मौजूद हैं, मैं देखा नहीं शुरू करने से पहले, वरना उन्हीं को बिताता था। मेरी क्या मजाल कि उनके सामने मैं बयान करूं, उन्हें भी मालूम है गुजर जाता है, यानी भूल जाता है अल्लाह तबारक व तआला के। ऐसा भूलता है कि भूलने की भी वजाहत अल्लाह ने की है, यानी कुछ याद भी रखता है इंसान, कुछ भूलता है, ऐसा भी होता है क्या? नहीं। लेकिन ये अल्लाह ने क्या फरमाया, मर्रा, वो ऐसा गुजर जाता है हम तकलीफ दूर करने के बाद, कअल्लम यदउना इला ज़ुर्रिन मस्सा, कि कभी उसने किसी तकलीफ में हमको पुकारा ही नहीं है। अल्लाह अकबर, पुकारा ही नहीं। मतलब क्या है, उसको तकलीफ भी नहीं आई, उसने पुकारा भी नहीं, हमने दूर भी नहीं कर दिया। कितना मतलबी इंसान है। दुनिया में दुनिया वालों के साथ थोड़ी मतलबी चल सकती है, क्योंकि हर एक मतलब से मिलता है। मतलब से मिलना गलत नहीं है, कोई मिलना जुलना छोड़ेंगे रिश्तेदारों को, ये बयान का मकसद ये नहीं है। मिलना जुलना मतलब में, भाई एक टेलर है, एक दुकानदार है, एक फला है, एक फला है, एक डॉक्टर है और एक साइंसदान है, एक दूसरे मतलब से मिलते हैं। मतलब से मिलना गलत नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया है, मतलब से मिलो, तुम सब मतलब से ही मेरे पास आ रहे हो। जन्नत और जहन्नम का मतलब नहीं होता, पेट का मतलब नहीं होता, तो मुझे अल्लाह अल्लाह बोलते क्या? नहीं बोलते। फिर मतलब से ही इंसान याद करता, लेकिन मतलब पूरा होने के बाद वो वक्त को याद करना कि मेरा मतलब यहाँ पूरा हुआ था, मेरे परवरदिगार ने मेरी बिगड़ी बनाई थी, मेरी तकलीफ को दूर किया था। तुम अल्लाह को क्यों भूल जाते हो? अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान कर दिया, कैसे बंदे हो तुम, मेरे तकलीफ में तो याद करते हो, जब तकलीफ गुजर जाती है तो तुम भी गुजर जाते हो। ऐसा गुजर जाते हो कि तुम्हें कभी तकलीफ पहुंची ही नहीं है। फिर अल्लाह फरमाता है ये गुनाह, ये गुनाह है। अल्लाह ने आगे फरमाया, कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल-मुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून, इसी तरह हम हद से आगे बढ़ने वालों को ऐसे अमल मुज़य्यन करके उनके सामने पेश करते हैं। और मतलबी बनो, और मतलबी बनो। यहाँ तो तुम मांग रहे तो दे रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारी मतलब परस्ती जन्नत तो तुम्हें नहीं दिला सकती, क्योंकि तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। मतलब में याद करते हो, मतलब खत्म होने के बाद भूल जाते हो। तुम ये हद से आगे बढ़ रहे हो, मैं तुम्हें जन्नत देने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर। तो मोमिन की शान क्या होती है? मतलब में अगर याद कर रहा है तो मतलब पूरा होने के बाद शुक्रिया अदा करना। अल्लाह मैंने मांगा तूने दिया, तेरी ज़ात कितनी प्यारी है, मेहरबान है। अल्लाह के नबी यही करते थे। अम्मा आयशा ने पूछा, है पैगंबर, है मेरे आका हबीबे किबरिया, रात रात पर इबादत कर रहे हैं आप, आपके पैर में वरम आ जा रहा है, आपकी उम्मत सो रही है, नबी जाग के इबादत कर रहा है, ना उजाला देखते ना अंधेरा देखते, कितनी इबादत कर रहे हैं आप? अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है ना, मेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिया है ना, मेरा इतना मर्तबा बढ़ा दिया है, और मेरी शान तो शान इतनी बड़ी शान है कि मेरे बाद अल्लाह ने नबूवत के सिलसिले को ही ख़त्म कर दिया, तो क्या मैं इसका शुक्रिया भी ना अदा करूँ? अल्लाह
क्या मैं उसका शुक्रिया भी ना अदा करो? मतलब नहीं, अल्लाह को याद करो लेकिन पूरा होने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, वरना अल्लाह ने फरमाया इसके बरखिलाफ जो मतलब परस्ती है वो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो हद कायम किया है उससे आगे बढ़ना। ये 12वीं आयत है। इसी तरीके की एक आयत इसी सूरत में 22 नंबर आयत है, उसमें अल्लाह ने वही फरमाया है जब तुम कश्तियों में सवार होते हो, जब अच्छी हवा चलती है तो खुश होते हो, जब तकलीफ में मुब्तला होते हैं, हवा इधर से उधर होती है, कश्ती डोल मटोल में मुब्तला हो जाती है, फिर तुम अल्लाह 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 करने लग जाते हो। तुम जब अल्लाह करते हो तो मुझे रहम आता है, जब मैं कश्ती को पार लगाता हूँ तो फिर मुझे भूल जाते हो, अल्लाह अल्लाह छोड़ के हुबुल हुबुल शुरू कर देते हो, अल्लाह अल्लाह छोड़ के लात लात शुरू कर देते हो। यानी लात हुबुल ये मनात वगैरह उनके बुतों के नाम है। अल्लाह अल्लाह समंदर में करते हो क्योंकि तुमको मालूम है यहाँ की तकलीफ में वही हमें साथ दे सकता है, लेकिन जब तकलीफ दूर होती है तो क्या करते हो, फिर मुझे भूल जाते हो। अल्लाह अकबर। इकरमा बिन अबी जहल बाप तो बहुत बुरा था लेकिन ये बेटा सहाबी बन के गुजरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसने ईमान ले आया, इस्लाम कबूल कर लिया। कहते हैं कि इकरमा बिन अबी जहल एक मर्तबा मक्का में बहुत तंग आ गए, बहुत तंग। कहने लगे क्या यार, सुबह उठे शाम उठे ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, ये कौन सा दीन पेश कर रहा है ये मोहम्मद? हम क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलो ना फिर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा सल्लल्लाहु बोलो, 10 मर्तबा रहमतें ले लो, हमारी झोली कम पड़ जाएगी। अल्लाह की रहमत भरते भरते थकेगी नहीं, लेकिन बोलना भी चाहिए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलना चाहिए। मैं दर्द से बोलता हूँ, आप लोग मेरे भाई बहन सब लोग नीचे बहने, आप भाई लोग हैं तो मुझे बोलना पड़ता है। हम सब एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे की खैर भाई करना चाहिए। कहते हैं कि इकरमा बिन अबी जहल तंग आकर मैं मक्का ही छोड़ देता हूँ, चला जाता हूँ कहीं पर, यहाँ नहीं रहूंगा मैं। क्या ये बाप दादा के दिन को छोड़ो, गलत है, वो है, ये है। चलने लगे, समंदर आया। जब समंदर के करीब पहुंचे तो सोचा अब यहाँ से कश्ती में जाना पड़ता, कश्ती के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। कश्ती में बैठे, कश्ती बीच समंदर में चली गई। कहने लगे कि वहां पर तूफान आया और जो नाखुदा होता है ना, यानी कश्ती चलाने वाला, कश्ती का ड्राइवर, उसने कहा कि सुनो हे कश्ती वालों, तुम भले जमीन पर ऐसे वो पत्थर की मूर्तियां, लकड़ी की मूर्तियां उनको पुकारते होंगे, वो तो मतलब परस्ती है, यहाँ वो नहीं आने वाले बचाने, जगह नहीं छोड़ सकते, समंदर में कहाँ आएंगे? यहाँ सिर्फ सातों आसमान के ऊपर जो बैठा है ना अल्लाह, वही बचाएगा, उसी को पुकारो, वो भी इखलास के साथ पुकारो। अल्लाह तू भी बचा, हाँ तुम भी आओ, ऐसा नहीं, इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह तू बचा, तभी हम बच सकते हैं। इकरमा कहते हैं मैंने दिल में ठान लिया जब यहाँ वो इस तकलीफ में बचा सकता है तो हर जगह उसी की कुदरत हो सकती है, हर जगह उसी की शान होनी चाहिए। तो फिर मैं तकलीफ में उसको याद करूं, जमीन पर जाकर पत्थरों के सामने माथा टेकूं, ये मेरे हाथ से होगा नहीं। मैं अब अज़्म करता हूं, अगर अल्लाह ने यहाँ अब मुझे बचा लिया, अब मैं पुकारूंगा अल्लाह को, क्योंकि सब लोग पुकार रहे हैं, मैं भी पुकारूंगा। लेकिन अगर अल्लाह ने बचा लिया तो इस अल्लाह को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। ये मोमिन की शान है। अल्लाह ने अगर तकलीफ में याद किया ना तो अल्लाह की तकलीफ, जो अल्लाह ने तकलीफ दूर की उसके बाद कभी भी अल्लाह को नहीं भूलना। यह है मोमिन की शान। कैसे मोमिन है हम? अल्लाह हजारों नेमतें देता है हमको, हजारों तो मैं बहुत झूठी बात बोल रहा हूँ, लाखों करोड़ों अरबों खरबों वो सब बाजू में डाल देते, एक नेमत से छीन लिया, आहा कितनी तकलीफ में मुब्तला किया अल्लाह, मैं ही नजर आया। भाई इधर भी देखो, इधर करोड़ों नेमतें हैं, भूल गए, इधर एक तकलीफ यही नजर आ रहा, भाई इधर भी तो देखो ना। इकरमा कहते हैं मैं अल्लाह खूब याद किया, अल्लाह ने बचा लिया। फिर मैं जब कश्ती से वापस आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, ऐ पैगंबर, मैं उस अल्लाह से भाग रहा था जो अल्लाह यहाँ भी साथ देता है, वहाँ भी साथ देता है, अब मैं कहीं नहीं भागूंगा अल्लाह को छोड़कर, मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इस वाक़ये से अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत करीमा में बयान किया है, इससे यही पता चलता है कि मोमिन मतलब परस्त नहीं होता। अब मैं ख़त्म करते करते बोलूँ तो जो मतलब परस्त होता है वो मोमिन, आप बोलिए, जो मतलब परस्त होता है वो मोमिन
اللہ اس بات کو قبول فرمائے اور ہمیں سچا پکا مومن بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.